Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the banking law and the Negotiable Instrument Act, and in this series I have discussed certain important concepts relating to the banking law, which are important for the examination point of view. Today in this video I am going to discuss with one more important question, that is the law relating to banking in India. Law was relating to banking in India, that was Banking Regulation Act 1949. Talk about the condition before this act. Before 1936, there was no special provisions concerning the banking companies, and the banks were used to be governed by the Bank Companies Act 1913. And in 1934, Reserve Bank of India Act was passed, and consequently Reserve Bank of India was established on 1st April 1935. In 1936, certain new provisions were added in Indian Companies Act 1913, but this act was not sufficient to regulate the banking system in India because there was no guarantee of money and poor liquidity of the banks. Banking Regulation Act 1949 is a piece of central legislature that is governing the banking institutions all over the India. It is also known as Financial Companies Regulation, and it has came into force on 16th March 1949, but later it was renamed as Banking Regulation Act. It regulates and controls the banks which are established in India. Hence, the Banking Regulation Act 1949 is the result of lengthy process, change of long period of time, and the act has been amended for many times to modify the old ones and to meet the demands of changing needs of the society and to meet the changing situation as per changing needs of the time. Thus, it is the time travel paradox of the long journey. To talk about the need and objects of the Banking Regulation Act, the provisions of Indian Companies Act 1913, by which Indian banking companies were regulated, it was felt inadequate and unsatisfactory to regulate the banking companies in India. Hence, the need was felt to have a specific legislation including the comprehensive coverage on all the aspects of banking business in India. For this purpose, this act was enacted. Due to the inadequate capital, many banks were failed, so the need was felt for the prescribed minimum capital requirement. Hence, by passing this act, many provisions concerning the minimum capital requirement for banks were brought. Second object, that is to consolidate and amend the law relating to the banking companies. That is also one of the main objects of this act. Third object, that is to enact the appropriate regulations for dealing with the financial industry in India. And the next object, that is to avoid the cutthroat, undesirable and ruthless competition among the banking companies. It was also one of the main objectives of this act. And for this purpose, this act was regulated. And it regulated the opening of new branches as well as the changing location of the old branches. And the next object of this act, that is to protect the interest of depositors and public at large by incorporating the certain provisions, that is providing cash reserve, liquidity reserve ratio. And the next object, that is the assigning power to RBI to appoint, reappoint and removal of the chairman, director and officers of the bank in order to ensure the smooth and efficient functioning of the banks in India. And the next object, that is to introduce the new provisions to restrict the foreign banks in investing the funds of Indian depositors outside India. And the next object, that is to enable the Reserve Bank of India to regulate the license and manage the financial institutions to guarantee their seamless and effective operations. And one of the main objects, that is to safeguard the interest of depositors as well as of general public at large by incorporating the certain provisions such as prescribing cash reserve and liquidity reserve ratio. Next object, that is by providing the compulsory amalgamation of the weaker banks with the senior banks in order to provide the strength to the banking system in India and also to provide the changing location of the existing banks. भारत के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया.
यदि हम इससे पहले की बात करें तो 1936 से पहले इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो बैंकिंग कंपनीज को गवर्न कर पाए। यहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स थे वो कंपनीज एक्ट 1913 के द्वारा गवर्न किए जाते थे। और 1934 में जैसा कि आपको ज्ञात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। और 1936 में 1936 में कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए जो कहीं ना कहीं बैंकिंग कंपनीज को इंडिया के अंदर रेगुलेट गारंटी प्रोवाइड करने में और उसको रेगुलेट करने में असमर्थ पाए जा रहे थे, जिसकी वजह लोग जो पैसा जमा करते थे उसकी पूरी तरह से उन्हें गारंटी नहीं दी जा पा रही थी और एक पुअर लिक्विडिटी के अंदर पाई जा रही थी, जिसकी वजह से एक नए एक्ट की जरूरत महसूस की गई और उसी के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। और ये एक ऐसा एक्ट है जो पूरी तरह से सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा पास करवाया गया है और इसी एक्ट को फाइनेंशियल कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 16 मार्च 1949 को फोर्स में आया एग्जिस्टेंस और उसके बाद इसी एक्ट का नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया। और ये जो एक्ट है ये भारत के अंदर जितने भी बैंकों की स्थापना की जाती है उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का कार्य करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, ये बहुत एक लंबे समय से चल रहे संघर्ष का परिणाम है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसी एक्ट के अंदर कई बार संशोधन भी किए गए और हमारे सोसाइटी की ज़रूरत को समझते हुए उसकी चेंजिंग नीड्स के हिसाब से उसके अंदर परिवर्तन किए गए और जिससे कि भारत के अंदर एक अच्छा एक्ट लाया जा सके। और ये इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक लंबी जर्नी का परिणाम है। यदि हम इस एक्ट के ज़रूरत और उद्देश्यों की बात करते हैं तो भारत के अंदर यदि आप देखें तो 1913 से पहले कंपनीज एक्ट के द्वारा जितने भी एक्ट थे वो गवर्न किए जा रहे थे, बैंक्स गवर्न किए जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक इनएडिक्वेट और अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जा रहा था। मतलब वो भारत के अंदर जो लोग थे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, जिसकी वजह से कंपनीज बैंकिंग कंपनी से संबंधित एक ऐसे एक्ट को लाने की जरूरत महसूस की गई जो पूरी तरह से बैंक से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको अपने अंदर शामिल कर पाए, उससे रिलेटेड उसके अंदर प्रोविजन शामिल हो। इसी उद्देश्य से बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट लाया गया। टू इनएडिक्वेट कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे हमारे भारत के अंदर कैपिटल की अपर्याप्त होने की वजह से भारत के अंदर जितने भी बैंक्स थे वो फेल हो गए थे। और इस तरह से आप देखेंगे तो मिनिमम, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पाई गई और यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लाकर उसके अंदर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से संबंधित कई प्रोविजन इसमें शामिल कर दिए गए, जिससे कि इस कमी को दूर किया जा सके। इसके अलावा भारत के अंदर जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है उनको कंसोलिडेट और उसको अमेंड करने के पर्पज से, उसके संबंधित लॉ को अमेंड करने के पर्पज से भी इस एक्ट को लाया गया। और टू अनेक्ट द एप्रोप्रिएट रेगुलेशंस, और यहाँ पे भारत के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं उनको पूरी तरह से अप्रोप्रिएटली उसको गवर्न करने के पर्पज से, उसको रेगुलेशन को डील करने के पर्पज से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत के अंदर जब बैंकिंग कंपनी से संबंधित कोई एक्ट नहीं था, उस समय भारत के अंदर जितने भी बैंकों की स्थापना की गई थी उनके अंदर एक तरह से अनडिजायरेबल रूथलेस कंपटीशन पाया जा रहा था। प्रॉपर कंपटीशन नहीं था, जो कंपटीशन सही होना चाहिए वो नहीं था, जिसकी वजह से जितनी भी बैंकिंग कंपनीज थी वो सही तरह से कार्य नहीं कर पा रही थी, जिससे कि बैंकों के अंदर जो कंपटीशन है वो सही तरीके से चल पाए और वो कंपटीशन अनडिजायरेबल रूथलेस ना रहे। इसी पर्पज से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नई ब्रांचेस खोली गई। इसके अलावा जो पुरानी ब्रांचेस थी उनकी लोकेशन चेंज कर दी गई, जिससे कि बैंकों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा अब भारत के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से, उनके इंटरेस्ट को की सुरक्षा करने के पर्पज से भी ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। इसके अंदर कई नए प्रोविजन जैसे कि कैश रिजर्व से संबंधित, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो से संबंधित कई प्रोविजन ऐड किए गए। और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर दे दी गई कि वो जितने भी बैंक हैं उनके अंदर
बड़े बड़े जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं और ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कर सके, उनकी रीअपॉइंटमेंट कर सके और उनको हटाने का प्रावधान कर सके। और ये पूरी की पूरी पावर रिजर्व बैंक को दे दी गई, जिससे कि वो एक तरह से रूलिंग पार्टी के रूप में कार्य कर पाए, उसके ऊपर सभी बैंकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए, जिससे कि जितने भी बैंक हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाए, एफिशिएंट फंक्शनिंग कर पाए। इसके अलावा टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजन भी ऐड किए गए जिससे कि अंदर भारत के अंदर जो करेंसी है वो भारत से बाहर ना जा पाए और भारत की जो करेंसी है वो भारत के अंदर ही रहे। तो इसके संबंध में भी कई प्रावधान इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर शामिल किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लाइसेंस दे दिया गया कि वो जितने भी भारत के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे उसको वो मैनेज कर पाएगा। इसके अलावा जो जितनी भी गारंटी है, भारत के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो उसको गारंटी दे पाएंगे, जिससे कि उन्हें ये लगे कि हाँ उनका पैसा सुरक्षित है। और यहाँ पर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा होनी चाहिए, जिससे कि जनरल पब्लिक अपना पैसा जमा करवाने में हिचके ना, वो असुरक्षा महसूस ना करे। एंड टू प्रोवाइड द कंपल्सरी अमलगमेशन, इसके अलावा आप देखेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान डाल दिए गए कि वीकर बैंक्स को सीनियर बैंक्स के साथ अमलगमेशन कर दिया जाएगा, जिससे के अंदर बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के पर्पज से भी ऐसा किया गया। तो हम इसका परिणाम यही निकालेंगे कि यहाँ पर बैंकिंग के अंदर बिफोर दिस एक्ट देयर वाज सेवरल इनकॉन्सिस्टेंसीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कई प्रकार की इनकॉन्सिस्टेंसी देखी जा रही थी, जिसको दूर करने की जरूरत थी। और इसी पर्पज से उनके जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया। और वहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाने के साथ ही उनके इंडस्ट्री को ग्रोथ दे दी गई और उनको सोफिस्टिकेटेड एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड दिस एक्ट गारंटी द अथॉरिटी। और इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक को एक सुपरवाइजरी पावर दे दी गई, जिससे कि वो भारत के अंदर जितने भी बैंक स्थापित होंगे उन पे अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। एंड यही आप कह सकते कि इट इज द वाटरशेड मूवमेंट। फाइनली वी कैन से दैट दिस लेजिस्लेशन हैज यूनिफाइड ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द वन रूफ। इसी के तहत हम यही कह सकते हैं कि भारत के अंदर इस एक्ट को लाकर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर स्थापित थे उनको एक कॉमन रूफ के अंदर ला दिया गया, कॉमन छाते के अंदर नीचे ला दिया गया, जिससे कि वो उसके अंदर रहकर सुचारू रूप से कार्य कर पाए, जिसके अंदर रिजर्व बैंक को एक तरह से रूलिंग पावर दे दी गई, जिससे वो बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें और जिससे कि वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सही ढंग से कार्य करें। And this is all about the law relating to the banking in India. Why the Banking Regulation Act has been enacted, and what are the main objects of the Banking Regulation Act to bring in India. भारत के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों लाया गया, उसकी क्या जरूरत महसूस दी, उसके क्या लाने के क्या उद्देश्य थे, तो ये सब मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया है। एंड इफ यू हैव एनी doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.